Hello, good morning, everyone. This is Prosenjit Das, and welcome you all to my YouTube channel as well as my Facebook page. After so many days, I'm uploading a video today. Because of my mother's death on 1st June, I was unable to upload and make any videos. Now, today onwards, I will continuously upload the videos if God wants. Now, today I'm going to explain one of the most important poems of Class 10 General English. A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Let us have a short idea and a brief idea about the poet first of all. The poet Leslie Norris, full name is George Leslie Norris, was born on 21st May 1921 and he breathed his last on 6th April 2006. He was a prize-winning Welsh poet and short story writer. Up to 1974, he earned his living by or as a college lecturer, teacher, headmaster. From 74, he continued and combined full-time writing with the residences at academic institutions in Britain and United States. And today, he is well considered as one of the important Welsh writers of the post-war period. His collection of stories, including collected stories, poems, including collected poems, have won many prizes. Among them are Colmanderley Poetry Prize, the David Haim Memorial Prize, and Catherine Mansfield Memorial Award, and AML Award for the Poetry in 1996, and Welsh Art Council's Senior Fiction Award. George Leslie Norris was born in Merthyr Tydal, South Wales. His father, George, was a tall, athletic man lacking education because he had to fight in the First World War. वर्ल्ड वॉर के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान वो जुड़े थे काम में, वो लड़ाई में, वॉर पे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए. नॉरिस हैड अ cheerful childhood. उनका बचपन बड़ा अच्छा था. When he was 19 years old, he joined the Royal Air Force during the Second World War. पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए जब वो 19 साल के हुए, वो भी ब्रिटिश एयर फोर्स ज्वाइन किए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे लड़े वो. Leslie initially trained as a pilot, but was injured when he collided with another plane on the ground while practicing landings. लैंडिंग के दौरान जब प्रैक्टिस कर रहे थे वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो इंजर्ड हो गए, जिसके कारण वो डिफेंस में नहीं रहे. बाद में आफ्टर रिकवरिंग, जैसे उन्होंने रिकवर कर लिया, ही जॉइन स्पेंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज द फुटबॉल प्लेयर इन एयर फोर्स टीम. नाउ let us have a glimpse, an idea and a clear picture of the poem. सिर्फ पोएम को पढ़ना, उसके क्वेश्चन आंसर को जानना is a waste. मोस्टली क्या होता है, बच्चे को पोएम एक्सप्लेन कर देते हैं, उनका आंसर्स दिया जाता है, वो उसको रट लेते हैं, एग्जाम में वोमिटिंग कर देते हैं, यानी रोट मेमोराइजेशन. ये सीख और सीखने का कोई कनेक्शन इसके साथ नहीं है. हमें जानना होगा ये कविता क्या है, किस प्रकार के रेटोरिकल डिवाइसेस, इसमें अलंकार कौन से प्रयोग किए गए हैं, इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, बहुत कुछ हम इसको जान सकते हैं. ओनली नोइंग द आंसर, कलेक्टिंग द आंसर फ्रॉम द मार्केट, like you can go to the market and buy a notebook and guidebook, you can get the answers. That is not the solution. We have to know the अंदर poem में क्या क्या मसाला है, क्या information है, क्या सीखना है, कविता किस प्रकार की होती है, क्या क्या इसमें ornamental devices use कर सकते हैं हम लोग, उसको हमें जानना है. तो let us start with the first stanza. First stanza we have: he stalks in his vivid stripes, a few steps in his cage, on pads of velvet quiet in a quiet rage. राइमिंग स्कीम यहाँ पर ABCB है, D लिखा है, B होना चाहिए, ये ABCB है, क्योंकि लेट अस फोकस ऑन द लास्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन. स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज. केज, रेज, B, स्ट्राइप्स एंड क्वाइट अलग अलग है. सो ABCB. वर्ड मीनिंग है स्टॉक्स यानी फॉलोज, विविड यानी ब्राइट, चमकीला, भड़कीला रंग, पैड्स, पॉज ऑफ द टाइगर, एंड रेज यानी एंगर, गुस्सा. अभी हम इसका मतलब समझते हैं. The poet says that there is a tiger who is caged and he's taking a stripes. He's with lots of stripes on his body. Just imagine करके देखिए, शेर का बॉडी में दाग जो स्ट्राइप्स होते हैं, वो एक केज में है, इधर से उधर, छोटा सा केज में, ज़्यादा चल नहीं पा रहा, 2 कदम उधर 2 कदम इधर ले रहा है, कभी मुड़ रहा है, इधर आ रहा है, कभी उधर आ रहा है,
और उसका जो जो पो है यानी पैरों का जो उसका पंजा है उसको वेलवेट के साथ सॉफ्ट किया कंपेयर किया गया है। इसमें रेटोरिकल डिवाइस कौन से हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। नाउ poet says that in first stanza the poet describes a tiger in a cage। वो केज में किस प्रकार एक पिंजरे में है, वो अपने गुस्सा को किस प्रकार काबू किए हुआ है। क्वाइट रेज इज़ अ रेटोरिकल डिवाइस, यहाँ पर जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा समझ जाएंगे। ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसको वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर रेटोरिकल डिवाइस जो प्रयोग किया गया है उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। मानवीकरण अर्थात जब किसी मानवीय गुण को, मानवीय एक्टिविटी को किसी जीव, जंतु, जानवर, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ को दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल टैगोर्स पोएम स्पोक अगेंस्ट द इम्पेरियलिज्म। इसका अर्थ क्या है? टैगोर की किताब ब्रिटिश के खिलाफ, टैगोर के कविताएं ब्रिटिश के खिलाफ बोली। तो क्या बोलना का काम कविता बोल सकती है? बोलने का काम तो इंसानों का है। अर्थात जब इंसानी गुण किसी को दिया जाए, किसी चीज़ को दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अंधेरे ने सूरज को गले लगा लिया। अभी गले लगाने का काम किसका है? इंसान का। क्या अंधेरा गले लगा सकता है? नहीं। लेकिन हमने जब मानवीय एक्टिविटी किसी व्यक्ति, वस्तु, भाववाचक संज्ञा को दे देते हैं तो उसको हम लोग मानवीकरण कहते हैं, यानी मानवीय गुण दे देते हैं। दैट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। वी पर्सोनिफाई द ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूटिंग द ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन क्वालिटी टू दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट एनीथिंग। नेक्स्ट पोएम में हमने किसको पर्सोनिफाई किया? पोएम में हमने पर्सोनिफाई किया टाइगर को। कैसे? हमने यहाँ पर ही पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया है जिसका मतलब है पर्सोनिफिकेशन। इसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया। ही हम ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने टाइगर के लिए यूज़ किया। दैट्स हाउ द टाइगर हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। नेक्स्ट हो गया मेटाफोर। मेटाफोर इज़ अ रेटोरिकल डिवाइस विच इज़ कॉल्ड अप्लाइड सिमिली। तो हमें सिमिली को समझना है। सिमिली क्या है? जब किसी दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जीव, जंतु, जानवर को बीच में समानता लाई जाती है। व्हेन सिमिलरिटी इज शोन बिटवीन द टू डिफरेंट थिंग्स एंड आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स और एनी प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ लाइक एंड एज, उसको कहते हैं सिमिली। जैसे कि शी इज़ लाइक ए क्वीन, तो शी इज़ लाइक ए ब्यूटीफुल क्वीन। अगर मैं सेंटेंस को लिखता हूँ तो शी और क्वीन के बीच में मैंने सिमिलरिटी लाया, और इस सिमिलरिटी लाने में मैंने क्या किया? लाइक का यूज़ किया। तो ये हो गया सिमिली। मैं एज भी यूज़ कर सकता हूँ। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज ए क्वीन। अगेन मैंने शी और क्वीन के बीच में सिमिलरिटी लाया विद द हेल्प ऑफ एज। जब मैं एज और लाइक को हटा देता हूँ तो क्या बनता है? शी इज़ ए ब्यूटीफुल क्वीन, ही इज़ ए ब्रेव लायन। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में मैंने लाइक और एज को हटा दिया, तो ये क्या बन गया? मेटाफोर। अगर मैं बोलूँ ही इज़ ब्रेव लाइक ए लायन, तो यहाँ पर हो गया सिमिली, क्योंकि लाइक लगाया। ही इज़ एज ब्रेव एज ए लायन, ये भी सिमिली क्योंकि मैंने यहाँ पर एज लगाया। जैसे मैं एज को हटा दूँ, ही इज़ ए ब्रेव लायन। अगेन मैंने ही और लायन के बीच में सिमिलरिटी लाया विदाउट द हेल्प ऑफ लाइक एंड एज, उसको कहते हैं मेटाफोर। इस पोएम में हमने मेटाफोर कहाँ पे यूज़ किया है? टाइगर्स पो आर कंपेयर विद द वेलवेट। टाइगर का जो पंजा है उसको हमने वेलवेट के साथ कंपेयर किया है। तो ये हो गया मेटाफोर, जहाँ पे हमने कोई लाइक और एस का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट हो गया इंजामन। इंजामन एक रेटोरिकल डिवाइस है जहाँ पर कविता में जब एक पंक्ति दूसरे पंक्ति में जाके खत्म होता है। व्हेन वन लाइन एंड्स टू अनदर लाइन, व्हेन वन लाइन ऑफ द पोएम कंटिन्यूज टू द अनदर लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, उसको कहते हैं एंजामन। मोस्टली ये होता है, हमें सीखना है। इमेजरी यानी इमेजिनेशन, अर्थात पोएम के थ्रू, पोएम के वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स एंड द लाइन्स, व्हेन द पोएट कैरी एंड ड्राइव्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। किसी कविता को पढ़ के जब हम एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, कुछ किसी चीज़ को, ताजमहल के बारे में पढ़ के, लाइन में पढ़ के हमने इमेजिन कर लिया कि मूनलिट नाइट में ताजमहल चमकता है, तो इमेजिनेशन क्रिएट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं इमेजरी। नाउ कॉन्सोनेंस, अगर किसी कविता के लाइन में किसी कॉन्सोनेंट लेटर को एक ही लाइन में बार बार प्रयोग किया गया है, शुरू में, बीच में, अंत में, लास्ट में, तो हो गया वो कॉन्सोनेंस। और एसोनेंस हो गया जब भावेल लेटर को, एक ही पर्टिकुलर भावेल लेटर को बार बार हमने किसी पंक्ति में प्रयोग किया गया है। जैसे पोएम में देख सकते हैं, स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, एस 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 का बार बार प्रयोग किया गया है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स में देखो आई 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 का कई बार प्रयोग किया गया है, तो इसको कहते हैं एसोनेंस, क्योंकि ये भावेल है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन एक रेटोरिकल डिवाइस है जहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखकर कुछ बनाया जाता है। जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, जिसे हम लोग समास में यूज़ करते हैं।
द्वंद्व समास में। इसी प्रकार ऑक्सीमोरन है जहाँ पर टू अपोजिट वर्ड, क्वाइट रेज, क्वाइट शांत, रेज गुस्सा, दोनों को हमने एक साथ रखकर कुछ एक नया मीनिंग देने की कोशिश की, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। सो मूविंग फॉरवर्ड, पहला स्टेंजा में पोएट ने डिस्क्राइब किया एक टाइगर को पिंजरे के अंदर, वो अपने गुस्से को शांत करके किस प्रकार वहाँ पे एक छोटे से कमरे में सीमित है, रहता है, जो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता एंड वहाँ पे मूव करता रहता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टैंजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plum deer pass. ABCB rhyming scheme same. Lurking यानी to be behind as to wait for your prey. हमने डिस्कवरी चैनल पे शेर के जो हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, शेर जब एक शिकार का पीछा करता है या फिर शिकार करने के लिए तैयार रहता है अपने शिकार को, तो झाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में छुप के बैठा रहता है और एम करता है। तो एक शेर को क्या करना चाहिए, पिंजरे के अंदर रहना चाहिए, नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट यानी उसका घर वहाँ पर होना चाहिए। नाउ पोएट डिस्क्राइब्स द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पर वो अपने नेचुरल रेगुलर एक्टिविटी कर रहा है। एक टाइगर को क्या करना चाहिए, ही शुड बी लॉकिंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। यहाँ पर भी राइमिंग स्कीम वही यूज़ किया गया, एंजाममेंट है इसमें, देन एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन और एसोनेंस कॉन्सोनेंस में फ़र्क क्या है, एसोनेंस कॉन्सोनेंस में कहीं भी किसी वर्ड के बीच में हम वो लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एलिट्रेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर लाइन पे एक पर्टिकुलर लेटर से बार बार वर्ड्स यूज़ किया जा रहा है। जैसे हिंदी में कानन कुंडल कुंचित कैसा, ये हिंदी का कॉमन डायलॉग है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो च से हर शब्द शुरू हो रहा है, उसको कहते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन। हेड इज हेल्ड हाई, एच, देखो इस तरह के रिपीटेशन को कहते हैं एलिट्रेशन। इमेजरी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। सेकंड स्टेंजा में पोएट कहता है अ टाइगर शुड बी लर्किंग इन शैडो, एक टाइगर को पिंजरे में नहीं, एक जंगल में होना चाहिए जहाँ पर वो घात लगाकर अपने शिकार के इंतज़ार कर रहा है, पानी नदी के सामने जहाँ पर वो अपना शिकार का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन वो कर क्या रहा है, एक हिरण का इंतज़ार करने के बदले वो क्या कर रहा है, पिंजरे में कैद है। अगेन नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, he should be snarling around houses at the edge, jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. इमेजिन कीजिए कोई कार्टून या फिर किसी में एक जंगल का एज, कोने पे, एज मतलब सीमा, उसका जो एकदम लास्ट बॉर्डर है, वहाँ पर कोना पर एक गांव है। तो गांव वासी जो है वो गांव वाले डर रहे हैं रात को, क्यों, बिकॉज ठीक जंगल के कोने में आकर शेर अपने खतरनाक आवाज़ से गुर्रा रहा है, रात को आवाज़ कर रहा है। ये हो गया नेचुरल चीज़ें जो रेगुलर टाइगर करता है। ही शुड बी एट द एज ऑफ द जंगल एंड बारिंग हिज फैंग्स, वाइट फैंग्स, फैंग मतलब हमारे जो मीन्स दांत होते हैं, जो फ्रंट के दो होते हैं उसको सीजर्स कहते हैं, फिर मोलर्स, पी मोलर्स, केनियन, ऐसे अलग अलग दांत होता है। जो केनियंस होते हैं वो शार्प दांत हमारे दोनों साइड में होता है, देखो कुत्तों का भी होता है, इंसानों का भी होता है, काटने के लिए, चीड़ने के लिए। तो उसको शार्प दिखाकर एकदम इमेजिन करो शेर जैसे मुंह दिखा रहा है खतरनाक, वैसे करना चाहिए। क्या करता है फिर वो, टेरराइजिंग द विलेज। इमेजिन अ टाइगर नियर बाय अ विलेज एट द एज ऑफ द जंगल कम्स एंड मेकिंग अ लाउड नॉइज, ही ग्रोल्स, ही मेक्स साउंड्स, दैट इज द नेचुरल थिंग एक टाइगर करता है। और इसमें भी रेटोरिकल डिवाइस है, इस पोएम में भी, इस स्टैंजा में भी एंजाममेंट है, आप ढूंढिए। ओनामेटोपिया अभी हमको समझना है। ओनामेटोपिया क्या है? ओनामेटोपिया एक रेटोरिकल डिवाइस है जहाँ पर इंग्लिश वर्ड इज क्रिएटेड फ्रॉम द साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दरवाज़ा पे मारने को क्या कहते हैं? नॉक। ये नॉक आया कहाँ से? विद द हिटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मारते वक्त जो साउंड क्रिएट होता है उसी को कहते हैं नॉक साउंड। सो जो इंग्लिश वर्ड क्रिएट होता है फ्रॉम द साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओनामेटोपिया। रैटल स्नेक को रैटल स्नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रैटलिंग नॉइस करता है, अर्थात थोड़ा जहाँ पर पत्थर, जो चिप्स वगैरह है, पत्थर पड़ा हुआ है, छोटे छोटे रेत है, वहाँ पर अगर बाइक का चक्का स्पीड से घुमाया जाए तो रैटलिंग नॉइस करता है, दैट्स कॉल्ड रैटल। जूम, बबल, रंबल, मम्बल, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, रैटल, टिक टॉक, उसके बूम, ये हो गया नॉक, ये हो गया ओनामेटोपिया, अर्थात
words created from the sound of objects. एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस आप लोगों को ढूंढना है. इस स्टेंजा में भी एसोनेंस है. और इस आगे बढ़ते हैं. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. ये सब नेचुरल चीज़ें जो सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में पोएट डिस्क्राइब्स द पोएट इन द नेचुरल हैबिटेट, describes the tiger in the natural habitat. In the first stanza, the poet describes the tiger in a zoo. Now in the fourth stanza, he said, उसको होना चाहिए था जंगल में, लेकिन है कहाँ? But he is locked. अभी लॉक्ड है वो, कैद है वो. कहाँ पर? एक कंक्रीट सेल पे. एक सेल माना छोटा सा कमरा, यानी वो पिंजरा. He is strength behind the bars. उसकी सारी शक्ति, उसका ताकत, उसकी एनर्जी अभी जैसे अरेस्ट कर दिया हो किसी ने उसके शक्तियों को. उसकी शक्ति कहाँ पर है अभी? उसकी शक्ति इज इन अ स्मॉल आयरन केज वेयर ही इज अनेबल टू डू एंड शो इज डेमोन्स्ट्रेट हिज पावर एंड स्किल. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज. वो कर क्या रहा है? केज जो एक पिंजरा है, इधर से उधर, बस उसके लेंथ को माप रहा है, जैसे चल रहा वहीं पर छोटे से जगह पर. अगर वो ओरिजिनल हैबिटेट में होता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, शिकार करता, नदी के सामने, झरने के सामने हिरण का शिकार करता, ऐसे बहुत सारे चीज़ें करता विच इज़ नेचुरल. लेकिन वो आज वो कैद है. ही इज़ अरेस्टेड इन अ स्मॉल केज. इंसान उसके आसपास जाना तो दूर की बात है, उसके दूर तक भी जाने में डरता है. बट आज विजिटर्स जू में आकर उसके सामने खड़ा है, क्योंकि ही इज़ अनेबल टू डू. ही इज़ बिहाइंड द आयरन केज, आयरन बार्स. ही इज़ बिहाइंड द बर्ड्स. बर्ड के पीछे है वो. नाउ कंक्रीट तो मालूम है, एक सीमेंट का बिल्डिंग जो होता है उसको सीमेंटेड बड़ा ब्लॉक में, उसमें एक छोटा सा आगे लोहा का ग्रिल लगा दिया, लोग देख सकें उसको. जो खतरनाक एनिमल है आज एक वो बन गया, उसको नौटंकी बना कर रख दिया है इंसानों ने. एसोनेंस है इसमें, कॉन्सोनेंस है, एलिट्रेशन है. ढूंढ लेना, आपको ढूंढना है इस स्टेंजा में. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट स्टेंजा में क्या कहता है पोएट? पोएट कहते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, the patrolling curs and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars. अंत में the poet says that tiger वापस वो केज में आ गया. पोएट पोएम को स्टार्ट करता है द टाइगर इन अ केज, फिर टाइगर को वो अपने नेचुरल हैबिटेट में लेके जाता है. फोर्थ स्टेंजा में वो अपने दुख को बताता है, एंड फिफ्थ स्टेंजा में आकर फिर पिंजरे में आकर एक्सप्रेस करता है व्हाट अ टाइगर वांट्स. ही हियर्स द लास्ट वॉइस. क्यूरेटर जो होता है, क्यूरेटर यानी जो देखभाल करता है जंगल का, जू का, एनिमल्स का, उसको क्यूरेटर कहते हैं. वो कहाँ पर है? वो अभी एक छोटे से कमरे में कैद है. और शेर तो क्यूरेटर आकर उसको ध्यान रखता है. पेट्रोलिंग कार जो पेट्रोल ख्याल करना रात में, वेदर सारा पिंजरा लॉक है कि नहीं, कोई जानवर बाहर है कि नहीं, अंदर है कि नहीं, ये सब देखने के लिए जो घूमता है उसको क्यूरेटर कहते हैं. दो पर्सन वो चेक करने आ रहा है. But inside the cage, the tiger is looking and staring at the stars with the brilliant eyes. What is brilliant eyes? Early in the morning, your mother and father comes and tells you, take this 10,000 rupees and go for shopping. तो ज़बरदस्त एक खुशी आपकी आंखों में आ जाएगी. अगर आपके घर आपको मालूम पड़ता है कि माँ ने आपको बाइक गिफ्ट किया है, मोबाइल गिफ्ट किया है, नया कंप्यूटर गिफ्ट किया है, तो आंखों में एक चमक होती है, एक नया होप एंड डिज़ायर. एग्जैक्टली द टाइगर इज स्टेयरिंग एट द स्काई विद द स्टार्स विद लॉट्स ऑफ होप कि एक दिन वो भी फ्री होगा. लेट मी टेक यू एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल. एक बर्ड को अगर मैं केज में रखूँ, पिंजरे में रखूँ, जू में रखूँ, तो बर्ड के लिए क्या क्या फ़ायदा है? उसको खाना टाइम पे मिल रहा है, पानी टाइम पे मिल रहा है, ही इज़ सेफ फ्रॉम द नेचुरल अटैक्स फ्रॉम हिज एनिमी. उसका दुश्मन के अटैक से वो बच रहा है, उसका जान बच रहा है, उसको समय में खाना मिल रहा है, समय में पानी मिल रहा है, उसको खाना ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाना नहीं पड़ रहा है. दैट मीन्स हिज लाइफ इज़ ओके. डिस्पाइट दैट अगर पिंजरा का दरवाज़ा खोल दिया जाए वो उड़कर चला जाएगा. ऐसा क्यों? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीडम, लिबर्टी. वी मस्ट, everyone, every living creature needs liberty, but we human beings are concerned with our liberty only. That is the problem. If I have a neighbor and he has exam next day, and I have my son's birthday today, and I am celebrating with a lot full noise and sound,
The neighbor comes and says, "Uncle, tomorrow is my exam. Could you kindly turn down the volume?" Then I say, "Arey, why? I'm celebrating my son's birthday at my home, not at your home. This is my personal liberty." Then the boy says, "Tomorrow I have exam and I should have my personal liberty to read and study in peace." तो दोनों भी तो अपने अपने जगह पे करेक्ट है, मैं उसके घर पे नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ पर हु इज़ मोर करेक्ट? यहाँ पर करेक्ट हो गया एजुकेशन, बेसिक सेंस, कॉमन सेंस. यहाँ पर मुझे सोचना चाहिए बिकॉज माई पार्टी इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन द बॉयज़ एग्जामिनेशन एंड कैरियर. तो एग्जैक्टली हम सिर्फ लिबर्टी के बारे में सोचते हैं. तो एवरी वन हैज़ द लिबर्टी टू थिंक, बट हमें ये सोचना होगा व्हाट टाइप ऑफ लिबर्टी वी नीड. हम इसी को तो सोसाइटी कहते हैं. हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, इसीलिए सोशल लोगों के बीच में रहते हैं. फॉर एग्जांपल हम फेसबुक में चलते हैं. नाउ सोशल नेटवर्किंग साइट हैज़ बिकम एंटी सोशल नेटवर्किंग साइट. जो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और व्हाट्सअप होना चाहिए था, वहाँ पर आज को हमको मिल क्या रहा है? वही लोग फेमस हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहा है. हमारा न्यू जनरेशन किसको फॉलो कर रहे हैं? ऐसा आदमी जो अपने वीडियो को शुरुआत में गंदी गंदी गाली से करता है. इतने गंदे गाली जो यू कैन नॉट लाइक वॉच दिस वीडियो एट द फैमिली विद योर फैमिली. एंड उसका मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स होता है. गंदा गाली, गंदा वीडियो, गंदी चीज़ें. तो ये सोशल नेटवर्किंग कहाँ से हुआ? मैं इस एग्जाम्पल से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज आई कैन नॉट एनफोर्स माई थॉट ऑन समवन. आपका जो चॉइस है, व्हाट इज़ योर मेंटालिटी, वही आपका चॉइस है, याद रखना. इफ़ यू लाइक सलमान खान एंड इफ़ यू लाइक व्हाट इज़ इट कॉल्ड राजकुमार राव, दोनों में हमें फ़र्क मालूम पड़ जाता है कि आपका चॉइस में ही आपका मेंटालिटी का मालूम पड़ता है. एग्जैक्टली सेम. आई कैन नॉट, मैं अपनी सोच को किसी पर थोप नहीं सकता, लेकिन मैं इतना समझ लेता हूँ कि जो गंदा गाली देने वाले को फॉलो करता है तो उसकी मेंटालिटी क्या है, मुझे इतना तो समझ में आ जाता है. वेरी सिंपल. मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑफ ए पर्सन हु स्टार्ट्स हिज वीडियो विद द गंदा गंदा गाली. नाउ हुम डू यू फॉलो? दिस क्वेश्चन. मैं किसी को साधु बनाने के नहीं बोल रहा हूँ, बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ. हम पसंद किसको करते हैं? हम पसंद उसी चीज़ को करते हैं जो हम हैं, जिस टाइप के मैं इंसान हूँ. सो लिबर्टी सबका है, तो मैं उन लोगों को फोर्स नहीं कर सकता कि मेरे जैसे सोचो या मैं जो सोचता हूँ वही सोचो. दैट इज़ कॉल्ड द लिबर्टी. एवरी वन हैज़ द राइट टू हैव देयर ओन लिबर्टी. Now let us rewind ourselves to last year when pandemic started, when lockdown was given 40-45 days. We were unable to stay in our home with all the facilities, all the food. चलो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सबको फेस किया, सभी ने फेस किया, गरीबों ने ज़्यादा, लेकिन हम घर पे थे, सेफ थे. कुछ लोग तो परिवार के साथ थे. Now imagine we could not spend few days at home with all the facilities, but imagine a tiger and animals, those whom we cage forever. कुछ दिन हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, विदाउट स्कूल, विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट शॉपिंग, विदाउट मार्केट, विदाउट पार्क, विदाउट जिम, विदाउट क्लब, विदाउट क्रिकेट, विदाउट फुटबॉल. ये तो जीवन भर उसमें डाल देते हैं केज में. तो हम इंसान सिर्फ अपनी खुशी और आज़ादी, अपनी लिबर्टी के लिए सोचते हैं. वी नेवर थिंक ऑफ द लिबर्टी ऑफ अदर. दिस इज़ द प्रॉब्लम. यहाँ पर सोसाइटी आती है, यहाँ पर सोच आती है कि we should not only think of our own liberty, we should also think of the liberty of others. Mutual respect and mutual understanding only can work. अगर मेरा ही धर्म सबसे बड़ा है, दूसरा धर्म जो भी है वो ख़राब है, then I am idiot. मैं पूरा इडियट हूँ. जो बुक में फॉलो कर रहा हूँ वो इडियट है, जो मुझे समझा रहा है वो भी इडियट है, गधा है. अगर मेरी माँ अच्छी है तो सबकी माँ अच्छी है उसके लिए. तो I must understand everyone has the different opinion, has different attitude, thought, living, individuality. But choice में हमारी पहचान है. हमारी जात से हमारी पहचान नहीं है, हमारे पैसे से हमारी पहचान नहीं है. Our clothes, cars, buildings, job is not our identity. Our identity is our character, our manners, our language, how we lead our life, our deeds. हमारा काम क्या है? Exactly. That is something different thing I want to express. But liberty, अगर खुद की आज़ादी चाहिए, we must think of others' liberty as well. We must respect others' liberty. Last stanza also we have enjambment, alliteration, assonance. It's your duty to find out. Now what I want to say, let me wind up the poem in such in a brief way. The poet Leslie Norris says that
there is a tiger in the cage. In the beginning of the poem, he describes a tiger in the cage where he's unable and he's just keep on walking in a small room, and he's all rage or gussa has become shant, and he's walking within a small cage which is not its natural habitat. Then the poet takes us to the natural habitat of a tiger, where behind or beside the lake, इन वाटर, लंबे लंबे घास के बीच में, जैसे हमने डिस्कवरी चैनल में देखा है, ही इज़ वेटिंग फॉर हिज प्रे, अपने शिकार का इंतजार कर रहा है, जहाँ पे डियर पे वो झप मारकर जंप मारकर वो अटैक करेगा। नेक्स्ट वो डिस्क्राइब करता है कि वो तो जंगल के आसपास का जो गांव है वहाँ पर आकर शाम को लोगों को डराता है, घुराता है। ये हो गया उसका नेचुरल थिंग। लेकिन वो कर क्या रहा है? ही इज़ हेल्पलेस। इंसान उसके आसपास आकर घूमकर फ़ोटो खींच के चला जा रहा है और वो अपने शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, वो नेचुरली कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एंड रात में उम्मीद से लेकर आंखें बिछाए ही इज़ वेटिंग के लुकिंग एट द स्टार्स कि एक दिन ही विल ऑल्सो बी फ्री एंड ही विल गो बैक टू हिज नेचुरल हैबिटेट। ब्रिलियंट आइज विद द होप, ब्रिलियंट आइज यानी आइज विद द होप। So that's how the poet describes the tiger in a zoo, then tiger in a natural habitat, and again tiger comes back to his zoo. So that's how describes the real sense of freedom. We human beings understand freedom, we love freedom, but we don't want to give freedom to other. हमें आज़ादी चाहिए, हम लड़ते भी उसके लिए, बट दूसरों की आज़ादी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। सो लॉजली नॉरिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। रेटोरिकल डिवाइसेस इस पोएम में समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आंसर्स तो वैसे ही मिल जाएंगे गाइड बुक में, पढ़ लेना, समझ लेना। एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स, दोज हु आर फॉलोइंग माय वीडियोस, आई वांट माय स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द रियल एसेंस एंड ब्यूटी ऑफ द पोएम की सुंदरता, उसकी मिठास को, उसमें जो रेटोरिकल डिवाइस अलंकार जो किया गया है, यूज़ करते हैं, उसको समझना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम टू माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट below if you have any questions. If you want any particular poem explanation, please comment. And if you have not subscribed, please subscribe to my channel. Thank you for your time. Have a nice day.